Okay. So compromise arrangements देखो, a scheme of compromise or arrangement is an agreement between a company and its members and outside liabilities when the company faces financial problems. Such an arrangement therefore also involves sacrifices by shareholders or creditors or debenture holders or by all of them. Accounting treatment for some of these cases: when equity shareholders give up their right over the reserves and accumulated profits of the company. So reserve account debit to reconstruction account, या to capital reduction account. Settlement of outside liabilities at lesser amount. So liabilities such as sundry creditors may agree to accept less amount in lieu of final settlement. Treatment will be as follows: outside liabilities account debit with the amount of sacrifice, provision account debit made by creditors, debenture holders, etc. to reconstruction account. Surrender of shares. In this method, shares are divided into shares of smaller denominations and then the shareholders are made to surrender their shares to the company. भूल जाओ वो shares surrender. These shares are then allotted to debenture holders and creditors so that their liabilities are reduced. So आप भूल जाओ, आप अभी शेयर होल्डर नहीं हो, अभी डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर बन गए. ओके. The unutilized surrendered shares are then cancelled by transferring them to reconstruction. So surrendered shares account debit to reconstruction. Entries in case of internal reconstruction. On a scheme of internal reconstruction being adopted through special resolution confirmed by the court, the accounting treatment of different situations and the entries to be passed are as follows. First, under the above mentioned methods, the alteration of share capital and the varying of the shareholders' rights do not involve opening the capital reduction or reconstruction account. करेक्ट? क्योंकि अल्टरेशन में क्या करना है? सिर्फ 100 का 10, 10 का 100, कंसोलिडेशन या स्प्लिटिंग, उसमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं आएगा. एंड वेरिंग ऑफ द राइट्स, पहले 10% डिविडेंड मिल रहा था, अभी 12 मिल रहा है. पहले क्यूमुलेटिव था, अभी नॉन क्यूमुलेटिव. सेकेंड, इट इज ओनली अंडर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अनरिप्रेजेंटेड रिजर्व्स, compromise or arrangements with the outsider liabilities and surrender of shares, there shall be capital reduction or reconstruction account used to which the unpresented assets or liabilities will be transferred as per the arrangement. Third, an appreciation in the value of assets or reduction in the amount of liability should be debited to the account concerned and credited to capital reduction account or reconstruction account. So जो भी appreciate हुआ asset तो asset to capital reduction, depreciate हुआ तो capital reduction to asset, liability increase हुई तो capital reduction to liability, liability decrease हुई तो liability account debit to capital reduction. Eliminate debit balance of P&L account मतलब loss and overvaluation of assets by crediting the accounts concerned and debiting the capital reduction or reconstruction account. So reconstruction account debit to profit and loss. Capital reduction मतलब ही reconstruction. For this purpose, any reserve appearing in the books of the company may be used. If any balance is left in the capital reduction or reconstruction account, it should be transferred to capital reserve. If there is any balance in the reconstruction account, it is finally transferred to the capital reserve under reserve surplus. But if the amount for writing off the assets and accumulated losses is more than the reconstruction amount, the reserves will be adjusted against the same. So आपका लॉसेस ज़्यादा है कंपेयर टू रिडक्शन अकाउंट, तो रिजर्व अकाउंट भी यूज करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट.
While preparing balance sheet of a reconstructed company, the following points are to be kept in mind. After the name of the company, the words "and reduced" should be added only if the court so orders. In case of fixed asset, the amount written off under the scheme of reconstruction must be shown for 5 years. Illustration 3 का question last line में, you are requested to show journal entries reflecting the above transactions including cash transaction and prepare balance sheet of the company after completion of the scheme. The balance sheet of A and company. रिजर्व सरप्लस में लॉस है ना इनको, इसलिए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, डेबिट बैलेंस है, बट वो रिजर्व सरप्लस के अंडर ही निगेटिव दिखाना है. ये डिबेंचर सेक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सेल करके क्या पे करना है, डिबेंचर्स. The court approved a scheme of reorganization to take effect on 1st April 2002, whereby the preference shares to be written down to 75 each and equity shares to 2 each. Written down करना है. Preference share 6,000 cumulative preference share account debit 100 each to 6,000 preference shares of ₹75 each. कैपिटल रिडक्शन क्यों आया? क्योंकि 75 जो 25 का जो वैल्यू रिटर्न डाउन किया कैपिटल रिडक्शन. हाँ, ये शेयर स्प्लिट या कंसोलिडेशन नहीं है. 100 का 10 किया तो वो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना, ये 100 का 10 नहीं हुआ है. एक शेयर 100 का था, अभी 10 शेयर 10 के है तो 100 रुपीज है तुम्हारे, बट अभी 100 नहीं, अभी 25 भूल जाओ. सो भूल जाओ मतलब कैपिटल रिडक्शन. ऐसे 8 रुपए भूलने हैं इक्विटी शेयर वालों को. कैपिटल कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर 10 2 हो गया नीचे रेट का रेट. हाँ करेक्ट. 75,000 to 6 लाख. भूल जाओ. आउट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स व्हिच आर नहीं, मुझे ही रीड करना पड़ेगा. मैं दूं क्या माइक? Out of the preference shares dividend which are in arrears for 4 years, 3/4 to be waived and equity shares of ₹2 each to be allotted for the remaining quarter 1/4 की. प्रेफरेंस डिविडेंड एक साल का कितना आया? 24,000 इंटू 4 years, नहीं तो इंटू 3 करो. 72,000 भूल जाना है ना, एंड बाकी का शेयर कैपिटल. ये देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000. So arrears of preference dividend satisfied by the issue of equity shares 25% of the amount 96,000. 96,000 कैसे आई? लिखो 24,000 इंटू 4 years. 4 years का प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स था ना, वैसे 96,000 आ गई. एंड उसका 1 quarter 1/4 मतलब ही 25% कैसे पे करना है? बाय गिविंग देम इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच. और बाकी 72,000 की एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो एरियर्स जो होते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के वो क्यूमुलेटिव होगा. क्यूमुलेटिव डिविडेंड कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन. सो अभी ड्यू ही नहीं है आपका डिविडेंड, इसलिए डिविडेंड पेएबल ऐसे अकाउंट ही नहीं है. सो इसलिए 72,000 कहाँ पर रिकॉर्ड किया ही नहीं था, तो करना भी नहीं है क्योंकि वो ड्यू भी नहीं है. थर्ड, हाँ, इंटरेस्ट पेएबल 22,500 टू कैश. हाँ,
नेक्स्ट Debenture holders agreed to नहीं, डिवेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू है 1 लाख बट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000 in part repayment of their holdings and to provide additional cash of rupees 1,30,000 secured by a floating charge on company's assets at an interest rate of 8% per annum. So debenture holders agreed to take over freehold property जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है बट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000 इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स. सो 20,000 से पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ेगी ना. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. ये 20,000 से बढ़ा दिया. और भी कुछ है जो हमने पढ़ा नहीं है एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन का आगे, तो उन दोनों के मिला के उन्होंने रिवैल्यूएशन की एंट्री की है. बुक वैल्यू कितना था 1 लाख, तो वो 1,20,000 हुआ ना. एंड और एक नीचे है किधर, तो ये देखो 8 वाला रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू डिबेंचर होल्डर्स टू बी रिवैल्यूड एट 387,500. सो पीपी देखो कितना है. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो 4,25,000 है टोटल. इसमें से 1 लाख आप किसको दे रहे हो, डिबेंचर होल्डर्स. सो बाकी 3,25,000 रिवैल्यूड एट 3,87,500. ऐसे टोटल हो गई ना 4,25,000. सो टोटल रिवैल्यूएशन कितने का हुआ 82,500 से अपवर्ड. सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. फिर डिबेंचर होल्डर्स को दो वो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट. आपके पास डिबेंचर्स कितने हैं 3,75,000 बट उसमें से पेड 1,20,000 के ही हुए. पार्ट पेमेंट लिखा ही है ना उन्होंने. इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग्स. अभी एंड के आगे का पढ़ो. डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू प्रोवाइड. ओके, एग्रीड तक कॉमन है. डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ रुपीज 1,30,000 secured by a floating charge on company's assets at an interest rate of 8% per annum. So bank account debit to 8%, debentures account 1,30,000. एडिशनल कैश प्रोवाइड की आपको. ये सिक्योर्ड है क्या डिबेंचर्स? फ्री होल्ड है, सिक्योर्ड और फ्री होल्ड है. उनका बैलेंस शीट नोट्स हुआ है. नहीं, ये 1,30,000 वाले ये सिक्योर्ड है बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स. ये नए वाले ऊपर के तो हाइपोथिकेशन ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जिसका आपने पार्ट पेमेंट किया ना 1,20,000 एंड ये नए आ गए 1,30,000. 8% डिबेंचर्स, वो 6% वाले थे. सो 8% पे सिक्योरिटी है. क्या है? फ्लोटिंग, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज एसेट. फ्लोटिंग मतलब सभी एसेट्स, मेरे में कुछ भी एसेट सेल कर सकता हूँ. इट्स फ्लोटिंग, फ्लोट हो रहा है चार्ज एसेट्स पे. एंड ये मतलब सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ही सेल कर सकते हो. नेक्स्ट, पेटेंट एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ. कैपिटल रिडक्शन टू पेटेंट कैपिटल रिडक्शन टू पेटेंट एंड गुडविल. एंड गुडविल. इन्वेंट्री टू बी रिटर्न ऑफ. कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेंट्री 65,000. अमाउंट ऑफ रुपीज 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स. कैपिटल रिडक्शन टू बैड डेट्स अगर किया तो पहले बैड डेट्स टू डेटर्स करना पड़ेगा एंड देन कैपिटल रिडक्शन टू बैड डेट्स करना पड़ेगा. ओके, कैपिटल रिडक्शन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. इन्वेस्टमेंट्स भी सोल्ड फॉर 1,40,000. कितने के हैं? 55.
हाँ तो प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट हुआ। 85 तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, बैंक 1,40,000 टू इन्वेस्टमेंट 55,000 टू कैपिटल रिडक्शन 85,000। Directors to accept settlement of their loan as to 90% thereof by allotment of equity shares of 2 each and as to 5% in cash and balance 5% being waived. Loan from directors 1 lakh 90,000 to share capital 90,000 to capital reduction 5,000 to cash 5,000। ठीक है। डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट 1 lakh टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 टू बैंक 5,000 टू कैपिटल रिडक्शन 5,000। पूरा इंटरप्रिटेशन का गेम है। हाँ ये 2,50,000 का 5% की पेनल्टी लगी। आपने एक कमिटमेंट की थी बट अभी वो कमिटमेंट आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, सो 12,500 की पेनल्टी पे करो। कैपिटल रिडक्शन टू बैंक यहाँ पर ही है 12,500। पेनल्टी पे की ना आपने, क्योंकि आप कैपिटल कमिटमेंट नहीं कर रहे थे। इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम। ओके, सो देखो अभी आपको जो बैलेंस शीट दी रहती है तो एक एक आइटम में क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। ओरिजिनल बैलेंस शीट शेयर कैपिटल कितना है 7,50,000। फिर आपने क्या क्या ऐड लेस डेबिट हुआ रहेगा तो लेस करो। सो ये डेबिट हो गया ना पूरा 7,50,000। नया पिक्चर में 1,50,000 आया और क्या हुआ 24,000 ऐड करो, मतलब 1,74,000 हो गया अभी तक। और 90,000 इनको दिए और बस। सो 2,64,000 आ गया क्या इक्विटी शेयर आ गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओरिजिनल कितने थे 4 लाख, उसमें से पहले गए 3 लाख 3 लाख। हाँ सो 3 लाख है और क्या हुआ बस प्रोग्रेस और नहीं हो गया ना फिर 3 लाख। नेक्स्ट एक एक देखना है। फिर रिजर्व सरप्लस डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल ट्रांसफर किया क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 5,35,000। ये दिया नहीं रहता एडजस्टमेंट, ये करनी होती है। ओके, रिजर्व सरप्लस हो गया। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3,75,000 लो कैलकुलेटर पे माइनस 1,20,000 ना पार्ट रीपेमेंट। नहीं वो अलग से दिखाने हैं, वो 8% वाले हैं ना। सो ये 2,55,000 अलग से एंड वो 8% डिबेंचर्स वाले अलग से 1,30,000। लॉन्ग टर्म के बाद अदर करंट लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स गया ना पूरा, इंटरेस्ट पेएबल भी पे कर दिया और कुछ नहीं है ना। अभी पीपीई में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लो 4,25,000। सॉरी रुको, ये नोट छोड़ के ट्रेड पेएबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या हुआ या सेम है वो अमाउंट 3 लाख एंड 1,95,000 195 और 3 लाख से बैंक होगा 3 लाख। हाँ
एंड 195 मैम वो है हाँ हाँ बैलेंस शीट 14.13 नीचे मतलब ऊपर जाएगी ये तो इलस्ट्रेशन 4 3 का ऊपर 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 हाँ तो वो 35,000 में आ गया। मैम बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं इन्होंने अलग लेते हैं उसमें कैश इक्विवेलेंट में एडजस्ट नहीं करते नहीं हो गया ना एडजस्ट। ये देखो ना बैंक ओवरड्राफ्ट उनका कितना था 195 हाँ हाँ तो लो निगेटिव 195,000। अभी जर्नल एंट्रीज पैसे कौन से एंट्री में आए हैं बैंक इंटरेस्ट पेबल माइनस इंटरेस्ट पेबल टू हाँ सो 1,30,000 पॉजिटिव है और कहाँ से आए प्लस 1,40,000 माइनस 22,500 इंटरेस्ट -22,500 एंड वो लोन 1,95,000 का ओडी था ना और इधर भी बैंक से ये भी 12,500 पे किया है ना पेनल्टी और 5,000 का भी पेमेंट है इसको डायरेक्टर्स लोन का आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये 35 सो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो 1,30,000 प्लस 1,40,000 माइनस 1,95,000 22,500 12,500 5,000 ऐसे करके 35,000 आ गया। इसलिए करंट लायबिलिटी में सिर्फ हाँ सिर्फ क्या दिख रहा है ट्रेड पेबल्स 3 लाख। अभी पीपीई के नोट में आ जाओ 5 लो कैलकुलेटर पे 4,25,000 प्रीपेमेंट मिला था 82,500 ऐड कर दो लेस 1,20,000 387 हाँ फिर प्लांट था 550,000 कौन सा प्लाट मैम इसमें दिया होता पीपी में प्लांट एक फ्री होल्ड लैंड हो गया दूसरा एसेट है प्लांट तो प्लांट ऐसे ही हाँ हाँ ये प्लांट हाँ और इसको रिवैल्यू करके दिया भी था ना किसी को तो डिवेंचर डिबेंचर होल्डर्स को हाँ उसमें ये 50,000 प्लांट ऐड कर दिया। हाँ अभी गुडविल का क्या हुआ गुडविल पैटर्न राइट ऑफ हो गया इन्वेस्टमेंट भी हमने सेल कर दी ट्रेड रिसीवेबल्स में प्रोविजन एंड इन्वेंट्री इन्वेंटरी राइट ऑफ पूरी हाँ हाँ तो 68,500 का प्रोविजन करो ट्रेड रिसीवेबल्स पे 259,500 ट्रेड रिसीवेबल 485 माइनस 4,85,000 माइनस 68,500 4,16,000 हाँ 4,16,500। एक काम करो अभी जर्नल एंट्रीज ओपन करो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट जहाँ जहाँ पर हुआ है अमाउंट्स बताओ 6 लाख प्लस 1 लाख 6,82,500 हाँ 82,500 प्लस 85,000 हाँ प्लस 85,000 प्लस 5,000 हो गया 8,72,500। अभी डेबिट माइनस करते जाओ माइनस 848,500 minus 24,000 last in the
ऊपर ही हो गया। तो जीरो आ गया ना, इसलिए कैपिटल रिजर्व को कुछ ट्रांसफर करने के लिए नहीं था, वो अकाउंट ही नील हो गया। ओके, आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले सकते हो, नहीं तो इलस्ट्रेशन 4 पढ़ना स्टार्ट करो कैसे भी। यस, चलो फोर्थ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन कहाँ पे है? 14.2 हाँ, शो बाय जर्नल एंट्रीज हाउ द फाइनेंशियल बुक्स आर अफेक्टेड बाय द स्कीम, मतलब जर्नल एंट्रीज, and prepare the balance sheet of the company after reconstruction. The nominal capital as reduced is to be increased to 6,50,000 for preference share capital and 7,50,000 for equity share capital. So given below is the balance sheet of Rebuild Limited. हाँ, बैलेंस शीट दी है, रिजर्व सरप्लस निगेटिव दिख रहा है। Preference dividend in arrears for 5 years. Debit balance of P&L. The company is not earning profits short of working capital and a scheme of reconstruction has been approved by both the classes of shareholders. A summary of the scheme is as follows. The equity shareholders have agreed that their rupees 50 shares should be reduced to 2.50 by cancellation of 47.50 per share. They have also agreed to subscribe for 3 new equity shares of rupees 2.50 each for each share held. तो पहला तो क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग 3 राइट शेयर्स अगेंस्ट ईच शेयर was issued and subscribed. So number of shares कितने हैं? हाँ, into 3, 45,000 shares into 2.5, 1,12,500. So ये हो गया पहला. The preference shareholders have agreed to cancel the arrears of dividend and to accept for each rupees 50 share 4 new 5% preference shares of rupees 10 each plus 6 new equity shares of rupees 2.50 each, all credited as fully paid. So arrears तो भूल जाने हैं उनको. And number of shares कितने हैं देखो, preference shares 12,000 है and एक शेयर के लिए 4 new shares of rupees 10 each. So 40 रुपये हो गए ना. एक शेयर की वैल्यू है उनकी 50, तो एक शेयर को वो 4 नए शेयर्स दे रहे हैं ऑफ रुपीज 10 एंड 5% प्रेफरेंस डिविडेंड अभी मिलेगा, 7% नहीं. सो वो 40 हो रहे हैं एंड 2.50 ईच के 6 न्यू इक्विटी शेयर्स. सो 2.50 इंटू 6 कितना होता है? 15. तो ज़्यादा ही मिल रहा है ना उनको, क्योंकि वो डिविडेंड में कॉम्पेंसेट कर रहे हैं. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 60,000, वो ज़्यादा पे करना पड़ा ना. 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4, ये कैसे आ गए? 6,000 इंटू 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स है ना इनके पास ऑफ रुपीज 50 ईच. सॉरी, सो 12,000 इंटू 4 लिखो वहां पर. 12,000 इंटू 4 इंटू 10, 12,000 शेयर्स इंटू 4 एंड ये 6 शेयर्स मिलने वाले थे ना. सो 12,000 इंटू 6 shares into 2.5, 1,80,000. लिखो कैलकुलेशन
एंड वहाँ पर ₹50 जो हुआ है ब्रैकेट में, तो उसको 2.5 करो। एक शेयर का फेस वैल्यू 2.5 है। सो उनको एक्चुअली 6 लाख ही देना था, 12,000 शेयर्स इंटू 50, ऐसे 6 लाख ही देना था, बट हमने 6,60,000 दिया, मतलब 60,000 का हमें लॉस हुआ, ज़्यादा दिया ना। हाँ, so ये directors have agreed to subscribe in cash for 40,000 new equity shares of rupees 2.50 each, in addition to any shares to be subscribed by them under A above. So bank account debit to share capital. हाँ हाँ हाँ, डी ई का of the cash received by the issue of new shares, 2 lakh is to be used to reduce the loan due by the company. हाँ, लोन रीपेमेंट का है ना ये, तो लोन टू बैंक ना 2 लाख, एंड ये वाला बैंक टू शेयर कैपिटल, द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड इज टू बी अप्लाइड to write off debit balance in P&L and to write off 35,000 from the value of plant. Any balance remaining is to be used to write down the value of trademarks and goodwill. तो ये सब capital reduction account debit to P&L to plant to trademarks and goodwill हो गया ना। सो ट्रेडमार्क एंड गुडविल की बैलेंसिंग फिगर है। हाँ, सो सारे ट्रेडमार्क एंड गुडविल राइट ऑफ नहीं हुए, बाकी के बैलेंस शीट में गए होंगे। एंड रिड्यूस लिखा है एंड देन बैलेंस शीट की है। सो ये दोनों क्वेश्चंस आज होमवर्क के लिए सॉल्व करो, 3 and 4। जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट ही है, लेजर्स हाँ ठीक है कभी कभी लेजर्स भी है। हाँ, सो 3-4 आप कर रहे हो होमवर्क के लिए, फिर कल 5, 6, 7, 8 करना पड़ेगा। कल 2 to 4 ले सकते हैं क्या क्लास, 2 घंटे, तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल डिस्ट्रीब्यूशन है इवनिंग में ग्रुप 2 का। सो 4 क्वेश्चंस है इलस्ट्रेशन के, एंड 10, 11, 12 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, ऐसे 7 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, सो वो 2 होमवर्क के लिए आप करो, आज जो डिस्कस किए वो सॉल्व करो 23 मिनट्स का टाइमर लगा के। चलो बाय बाय। कल का टाइमिंग 2 to 4।